As you know that we are studying the chapter concept of aggregate demand and aggregate supply, and we have already done meaning and components of aggregate demand in two sector, meaning and components of aggregate supply. Today I am going to explain you about propensity to consume, consumption function, concept of APC and MPC. So let's start with it. So here what is consumption expenditure? जो हम लोग expenditure कर रहे हैं वो है क्या? Total expenditure on the purchase of goods and services by the entire household. When we are talking about consumption expenditure, it is completely done by households. It is divided into two parts: autonomous consumption and induced consumption. Now let us study the types of consumption about autonomous and induced. Autonomous consumption is the consumption, minimum level of consumption at zero level of income, which we call C bar. I have already explained you C bar in my Google Meet classes. What is autonomous consumption? Minimum level of consumption, like when our income is zero, whatever we are consuming from our past savings, right? That consumption, what we consume at zero level of income, is known as autonomous consumption, which does not change with the increase in the income. Autonomous consumption तो उतना होना ही होना है. इंड्यूस्ड जो है वो इनकम के साथ साथ चेंज होता है. इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन बढ़ता जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल्स ऑफ इनकम. इनकम इंक्रीजेज, consumption also increases, but mind it, the rate of increase in consumption is always less than the rate of increase in income. Now what is consumption function or propensity to consume? Now here in consumption function, or when we say that propensity to consume, कितनी हमारी propensity है या tendency है consume करने की, it depends on it is the relationship between the consumption and the income. It depends on the income, how much we consume. Income increases, consumption also increases. I told you earlier, income increases, consumption also increases, but the rate of increase in income is greater than the rate of increase in consumption, but by less than the increase in income, some part is saved. If income is 0, consumption is 50, income increases by 100, consumption also becomes 100. Consumption is also increasing, but consumption is increasing by only 50 because the rest of the part is saved. We have not taken anything else out of savings, right? Here people tends to save. So this is what called as consumption function is equals to function of income. Now let us check it with the example. Income is given and consumption is given. 0, 10, 20, 30, 40, 50. When zero level of income is there, we consume 20. That means this is autonomous consumption, which we denote by C bar, or somewhere you can look at it as A bar or normal A also. So it is, so don't get confused कि वो तो C bar था. It can be written as A also. This is autonomous consumption. And when we talk about the consumption function curve, पहले भी हम लोगों ने इस डायग्राम को और शेड्यूल को किया है. दोबारा फिर से समझा रही हूँ जिससे कि आपकी समझ में और अच्छे से आ जाए. This is consumption. The change we are having in the x-axis, that means जो change हमारी income में आ रहा है, this change of 10, it is change in income, right? It is change in income, and the change on the y-axis is change in consumption. Now this is autonomous consumption. Now here we take about two approaches, which I earlier also told you: classical's approach and Keynesian's approach. Classicals कहते थे supply is perfectly inelastic with regard to price. Inelastic means यहाँ वो बोलते थे supply creates its own demand. क्लासिकल्स इकोनॉमिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि हमारी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे डिमांड ज़्यादा हो चाहे डिमांड कम हो. हमारी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक है. ना हमारी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी ना हमारी सप्लाई कम होगी. प्राइस बढ़े कम हो जो भी हो, हमारी सप्लाई पे चेंज नहीं आएगा. अपने आप जितना हमने सप्लाई किया है उसकी डिमांड होगी ही होगी. अपने आप सप्लाई जो है उसकी डिमांड क्रिएट कर लेगी, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. तो इसीलिए कीन्जन ने अपनी अप्रोच दी. उसने बोला कि शॉर्ट दिस इज़ सप्लाई. ओके, ये सप्लाई है. वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई. इन शॉर्ट रन
द प्राइसेस ऑफ द गुड्स डू नॉट चेंज। ऑब्वियसली शॉर्ट रन, कीन्स हमेशा शॉर्ट रन की बात करता है। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है प्रोडक्शन चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में, प्रोडक्शन फंक्शन में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में शॉर्ट रन के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई की है। तो यहाँ पर शॉर्ट रन के अंदर क्या है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिट। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिट मीन्स सप्लाई हमारी कितनी भी चेंज हो जाएगी, हम सप्लाई को बढ़ा देंगे या सप्लाई को कम कर देंगे हमारी इनकम के साथ साथ या आउटपुट के साथ साथ। सो कब तक हमारी सप्लाई कब तक चेंज हो सकती है, जब तक हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं फुल्ली यूटिलाइज्ड ना हो जाए। जिस पॉइंट पे हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो गए फिर हमारी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास कोई रिसोर्सेज बचे ही नहीं है। ठीक है, तो एट द गिवन प्राइस लेवल, सेम प्राइस पे आउटपुट कैन इंक्रीज टिल ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड। इसके बाद हमारा सिर्फ प्राइस बढ़ता है, इसके बाद हमारा आउटपुट नहीं बढ़ सकता। ठीक है, देखो अब आप देखो ये इंक्रीज होता जा रहा है। कब तक इंक्रीज होगा, परफेक्टली इलास्टिक है। कहाँ थी ये, पहले यहाँ पे थी, यहाँ से इंक्रीज हो के आगे चली गई। रीज़न बीइंग कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे। जैसे ही रिसोर्सेज हमारे बिल्कुल ही हमारे रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारी सप्लाई कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी कि अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, अब हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अब ये जो कर्व है ऐसे ना होकर अब क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, वंस एन इकोनॉमी अटेन्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नो फर्दर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन आर पॉसिबल। एट दिस टाइम व्हाट इंक्रीजेज, एट दिस टाइम ओनली प्राइस इंक्रीजेज। तो सप्लाई कर्व लाइन जो है वो 45 डिग्री क्यों होती है, हमें पता है। सप्लाई कर्व लाइन, इसको हम इनकम भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस पॉइंट का लाइन पॉइंट पे जो भी पॉइंट है इस लाइन पे, वो क्या कहता है, जितना इधर है उतना ही हमने इधर कवर किया हुआ है। टोटल बिल्कुल सेम है हमारा, जितना डिफरेंस हमारा वाई एक्सिस पे है उतना ही हमारा एक्स एक्सिस पे है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एवरी पॉइंट ऑन 45 डिग्री रिप्रेजेंट्स ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू ए एस। और यहाँ पे हम लोग ऑल्दो ए डी भी लेते हैं, ए एस भी लेते हैं, तो ए एस को इनकम भी कह दिया जाता है, यही कर्व आती है। तो इस पे इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारा ए डी इज इक्वल टू ए एस, जबकि ऐसा नहीं। जब हम अगर हम सपोज ए डी बनाते हैं तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट आपस में कर जाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ए डी इक्वल्स टू ए एस। और ये 45 डिग्री की लाइन क्या है, ये लाइन ऑफ रेफरेंस है जो हमको ये बताती है कि हाँ, हम मान कर चलते हैं कि इस लाइन के ऊपर दोनों चीज़ें बराबर ही होती हैं, इक्वी डिस्टेंट है दोनों की दोनों, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से। तो इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे अभी आगे पढ़ेंगे, ये एक तरह से क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। सपोज नेशनल इनकम इज गिवन 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100. Consumption is not given, it has been asked. Saving is given, investment is given, and you have to calculate AD and AS. Now listen, when consumption is not given, you can find consumption because we know that y is equals to C plus S. Now when we have to calculate C, y is given and S is given, so y minus S, that means 600 minus 0, it will be 600, right? तो अब इसको हम नीचे एक करके देखते जाते हैं। 600 माइनस 0 600, 900 माइनस 60 840, 1200 माइनस 120 1080। तो इस तरह से सी निकाल लिया। कंजम्पशन प्लस सेविंग किया तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई आ गया, एंड एग्रीगेट सप्लाई वाई के बिल्कुल इक्वल है। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड किया तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं गूगल मीट क्लास में। नाउ व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पर यूनिट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पर लेवल ऑफ इनकम देखते हैं कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर जो भी हमारी इनकम है उसका कितना पार्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज एपीसीसी ओवर वाई। अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट वाई एंड सी, हाउ कैन वी कैलकुलेट एपीसी। हर लेवल पे हमको अलग अलग एपीसी कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे कितना एवरेज कंजम्पशन है, यहाँ पर कितना एवरेज कंजम्पशन है, राइट। तो इट विल बी 6/0 infinity, then 12/10, 1.2, third one is 18/20, 0.9, then 24/30.8. This is how APC is calculated. You can see that as income is increasing, average propensity to consume is decreasing. Infinity से 1.2 हुआ, then 0.9, 0.8. That means income increases
average propensity to consume decreases because people tends to save. People tends to save. कंजम्पशन बढ़ता है लेकिन सेविंग भी बढ़ जाती है. ग्राफिक प्रेजेंटेशन अगर हम देखें एपीसी की, सपोज दिस इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. एपीसी क्या होगा हमारा? एपीसी इज इक्वल्स टू सी ओवर वाई. ठीक है, तो एपीसी हम पहले पे देखेंगे 150 ओवर 200. 150 ये कंजम्पशन है, इनकम हमने हमेशा वाई एक्सिस पे ली है, ये कंजम्पशन है सी ओवर वाई. 150 ओवर 200 और 100 ओवर 100. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, इस पॉइंट का अलग निकलेगा, इस पॉइंट का अलग, ए पॉइंट बी पॉइंट. इस पॉइंट पे एपीसी अलग होगा, इस पॉइंट पे एपीसी अलग होगा. दिस इज़ व्हाट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़. यहाँ पे जैसे 0.75 हो गया, यहाँ पे 1 है. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम 0 से 100 हुई, हमारा एपीसी 1 था. 100 से 200 हुई, एपीसी कम होके 0.75 हो गया, तो एपीसी फॉल्स. अब यहाँ पे हम लोग इसको एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं. इनकम 0 है, 0 से 100 हुई, 100 से 200, 200 से 300. कंजम्पशन इज गिवन and APC has been calculated. We can see that APC is decreasing. Now when APC is infinity, जब इनकम 0, अभी हम लोगों का जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. डिनोमिनेटर मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन APC is infinity. एंड कितना 1 से ज़्यादा कब है? 1 से ज़्यादा होगा तो जब कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन 1. 1 कब होगा? जब दोनों बराबर हो जाएंगे एट ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेविंग इज इक्वल्स टू 0. और 1 से कम कब होगा? व्हेन कंजम्पशन कम हो जाएगा और इनकम ज़्यादा हो जाएगी, वो 1 से कम आ जाएगा. सो दिस इज AS, और यू कैन से इनकम कर्व ऑल्सो. ये इनकम है, ये कंजम्पशन है. यू कैन सी दैट दिस इज़ अ पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन. जितना इनकम आया उतना कंज्यूम हो गया. इस पॉइंट को F नाम दे दिया, दिस इज सेविंग. अब इसके अंदर देखते जाओ. इस पॉइंट पे व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन, हियर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. सेविंग से पैसा आ रहा है, इस टाइम पे APC इज ग्रेटर देन 1 है. यहाँ आप देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है? APC is 1 because here income is equal to C. And after this, when we talk about this situation, here APC is less than 1 because here consumption is less and income is more. अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया. अब ये जो इसके जो नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. APC कैन नेवर बी नेगेटिव. APC कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. और क्यों नहीं होगा? 0 भी नहीं होगा, क्योंकि देखो APC क्या है? C/Y. नेगेटिव कब होगा? माइनस में चीज़ कब जाएगी? जब कोई चीज़ नेगेटिव, ना तो हमारा कंजम्पशन कभी नेगेटिव हो सकता है, ना कभी इनकम नेगेटिव हो सकती है. ठीक है. अच्छा, ये कभी 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगी. 0 आंसर कब आता है? जब न्यूमरेटर 0 और नीचे कोई भी वैल्यू तब 0 आएगा. कभी हमारा कंजम्पशन 0 हो ही नहीं सकता. एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो वी आर हैविंग सम कंजम्पशन. सो APC कैन नेवर बी 0. APC कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट? Never be 0 because consumption can never be 0 and APC falls with the increase in income. वो हम लोगों ने देख लिया, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी है APC फॉल हुआ है. MPC I'll be explaining you in my next video. Please go through this. These properties are very important from one mark point of questions. All the best. God bless you all.